ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಫರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಸುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಶಫೀಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಸಾಹೇಬರು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಲೀಂ ಪಾಷಾ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಮಾಜಿ MLC ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರಿಗೆ, ದಯಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಆಬಿದ್ ಅಸ್ಲಂ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಜಫರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख करोड़ों एहसान और शुक्र है, आज हम सब मिलकर यहाँ बैठकर कुछ बात सुने और बताने का मौका इनायत फरमाया। मोहतरम हज़रात, आप सब जानते हैं आइंदा 1-2 माह में रियासत असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं। हम सब मुत्तहदा होकर हल्के की तरक्की हो और अवाम की बहबूदी के जहन में रखकर अपना कीमती वोट, अनमोल वोट का इस्तेमाल करें। आज रियासत भर में जेडीएस पार्टी की लहर दौड़ चुकी है। साबिक़ वज़ीर आला HD कुमारस्वामी साहब ने पंचरत्न का जो कार्यक्रम किया है, उस कार्यक्रम के जरिए से आज सारे कर्नाटक में एक लहर दौड़ी हुई है। आप सब हालात से वाकिफ हैं। इस हालात से जो यहाँ पर मौजूदा हालात हैं, इससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। बस मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा, एक मौका दे, आप मुझे अपना वोट देकर मुझको खरीद ले। ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ನನಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸರ್ವಜನಾಂಗನ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಒಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಖ್, ಇಸಾಯಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಭೂಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ JDS. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಾಗೂ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಕ್ಸ್ MLC ಸಾಹೇಬ್ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರವರೇ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ पूरा नाम शमशुल हक साहेब्रे, ಹಿರಿವಸ್ತು ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀ ಶಫೀವುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ರೋಷನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಮುಸ್ತಫಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಯುವ ಧೈರ್ಯವಂತ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧೈರ್ಯವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಯುವರಾಜ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಪಾಷಾ ಅವರೇ, ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಮುಖಂಡರಾದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಹೊಸ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಸ್ತಾನ್ರವರೇ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ತಾಯಂದರೇ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಸೈನಿಕರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ. दोबारा आप सबकी खिदमत में मिर्ज़ाफरुल्लाह खान अपना सलाम पेश करता है, बशर्त कि आप लोगों को नसीहत भी देना चाहता है कि जिस राज्य में आप हो तो ज़रूरी है कि आप कन्नड़ा सीखो, कन्नड़ा अपने बच्चों को सिखाओ, ताकि हमारी बात लोग समझ सके और औरों की बात हमारी नस्लें समझ सके. जब तक हम इस ज़बान का ज्ञाप रखेंगे, जब तक हम इनकी ज़बान को नहीं समझेंगे तो जवाब कैसे देंगे, कैसे आगे बढ़ेगी ये कौम. इसलिए मैंने अपनी शुरुआत कन्नड़ा से की. मैं जानता हूँ कि यहाँ मेजॉरिटी में ज़्यादातर हम कौम है उर्दू ज़बान बोलने वाले हैं, इसके बावजूद भी मैंने कन्नड़ा से शुरुआत की. हमारे हक साहब ने, शमशुल हक साहब ने कई मुद्दों पे बात किए, पार्टी के मुद्दों पे बात किए, श्रीमान कुमार स्वामी जी के बारे में बताए, देवेगौड़ा जी के बारे में बताए. उसी तरीके से हमारे आने वाली नस्लों की लीडरशिप करने वाले हमारे शहजादे इमरान ने, उन्होंने भी कई बातें बताए, पार्टी के बारे में बताए. और उम्मीद करता हूं कि मेरे बाद भी जो बोलेंगे हमारे बुजुर्ग लीडर, वो भी कई पॉलिसीज़ हमारे जनता दल के बारे में बताएंगे. तो बहरहाल मैं इस पूरी कहानियों पे नहीं जाता. मुझसे पहले तो मस्तान भी बोल रहे थे, उन्होंने भी अच्छी जज्बाती स्पीच दी, सुना. अल्लाह इन नौजवानों को ताकत दे, आप लोगों से मुखातिब होने की हिम्मत दे और इस कौम की रहनुमाई करने की हिम्मत दे. दुआ के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ. मुद्दे हज़ार, शुरू कहाँ से करूं, लेकिन आप लोगों को इस देश की, इस मुल्क की सियासत को समझना ज़रूरी है और हमारी पार्टी को समझना ज़रूरत है. सवाल ये पैदा होता है कि जनता दल को वोट क्यों दे. ये ज़फ़रुल्लाह खान, ये CM इब्राहिम साहब, ये सारे लीडरान जो भर के बैठे हैं, ये लोग मुस्तफ़ा साहब के हक़ में वोट मांग रहे हैं, पार्टी को वोट मांग रहे हैं. तो इस पार्टी के फ़ायदे क्या है? अगर इस पार्टी को अगर आप लोग इंतखाब नहीं करते हैं तो इसके नुकसानात क्या है, ये जानना आप लोगों को ज़रूरी है. तो खैर, आज कर्नाटक राज्य में हम लोगों को उस ज़माने से एक पार्टी डरा रही है. अगर आप ये करोगे तो बीजेपी आ जाएगी, अगर वो करोगे तो बीजेपी आ जाएगी, वो करेंगे तो अरे आने दो बीजेपी को. आ गई बीजेपी, क्या कर ली बीजेपी, क्या कर सकती है बीजेपी. ये लोग ने तो अपनी हदें पार कर दी है. अब बचा क्या है, अब क्या है, सरफरोशी के लिए तैयार होना चाहिए अभी, और कुछ रास्ता नहीं है. कब तक झुक के चलोगे? क्या हमारे बाप दादाओं का हक नहीं है? क्या हमारे बाप दादाओं का किसी की कोई कुर्बानी नहीं है? था उस जमाने में जिन्ना साहब उस तरफ खड़ा रह के बुला रहे थे, मुसलमानों आओ पाकिस्तान जाएंगे.
जाएंगे, हम मुसलमान इस्लामी मुल्क बनाएंगे। लेकिन हमारे बाप दादाओं ने क्या फैसला किया था? नहीं, हम यहाँ पे इसी मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई हम मिलजुल के जिएंगे, वो फैसला किए थे। उनकी औलाद है, हम मुसलमान हैं और हम भारतीय मुसलमान हैं हम लोग। तो ये हमारा हक कोई मत का लाज छीन नहीं सकता। डराते हैं हमको बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, आने के इन लोगों से हाथ मिलाए, बीजेपी से हाथ मिलाया ताकि कम से कम पार्टी को बचा सके। अगर पार्टी बचेगी तो सेक्युलरिज्म बचेगा, ये सोचते उन्होंने हाथ मिलाया। फिर बाद में क्या हुआ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने क्या किया? दोबारा जब पिछली मर्तबा सरकार बनाई गई तो कांग्रेस के सारे लीडर श्रीमान देवेगौड़ा के घर पे आए, बल्कि श्रीमान देवेगौड़ा या कुमार स्वामी जी किसी और के घर पे नहीं गए थे। जब वो आए तो उन्होंने ये कहा था कि बगैर शर्त के आप लोग सरकार बनाओ, हम लोग साथ देंगे। अंजाम क्या हो गया? इतना सर दर्द किए, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, इतने कंडीशनें लगा दिए कि 70% उनका हक हो गया और 30% जितना का हुआ। मुसलमानों को हक मिलने से हम लोग बाकी रह गए। कई मुसलमानों को इसका फ़ायदा होना चाहिए था। मुझे पता है कई मेरे मीडिया वाले भाई लोग सवाल करते हैं कि किसको क्या दिया गया। फारूक साहब को 4 जुम्मा 8 दिन में MLC बना दिया गया इस पार्टी से। मुझे KMDC चेयरमैन बनाया गया। सिर्फ 37 दिन के दिनों में मैंने 125 करोड़ रुपए विदाउट एनी करप्शन हराम